Okay, so in today's class, I'm going to talk about some miscellaneous questions based on matrices. Check this out. If A is a square matrix such that A square is I, then find the simplified value of this expression. So the basic idea is, in general, we know a minus b whole cube, which is for the numbers a cube minus 3a square b plus 3ab square and then minus b cube. So such formulas are valid for the real numbers, but they are not in general valid for matrices. But if one of the matrix is identity matrix like this, so the following formula again works quite well. That means if now I consider the given expression and expand this, the first term using the formula, so this is a minus b whole cube. So using that, a cube minus 3 a square into b plus 3 a b square minus b cube. So this is the expansion for the first term. Similarly, applying the formula for a plus b whole cube in the second one, usual method. So a cube plus 3 a square into I plus 3a into I square and plus I cube. And then there is minus 7a. Do remember few basic formulas, recall them. A into I is always A is equal to I into A. I power n, any power of n, that is always equal to I. So using this idea, let's begin. One can easily observe when I open the bracket, so I can safely cancel out this term and this term. So a cube plus a cube is my 2a and followed by plus 6a into I square minus 7a. A cube can be written as a square into a, और I square I हो गया और I से किसी को भी मल्टीप्लाई करा वो सेम रहेगा. You may give the reasons if you want, otherwise that is all okay. Without reason, that is self-explanatory. Now a square is given as I. So this is I. तो 2ia, तो I अगर ये है तो ia a ही दे देगा, and this finally gives us 8a minus 7a, which is your required simplified value. So ये बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है. So though little bit calculation and usage of 2-3 formulas is here, but that's a quite basic and simple question. Check out this another 2 marker question. Find the value of x if this product is equal to the identity matrix. So identity matrix simply refer to I, and since both are of the order 3 cross 3, so of course this is again order 3 cross 3. So according to question, हमें क्या given है? 2 0 7 0 1 0 1 minus 2 1 into minus x 14x 7x 0 1 0 x minus 4x and minus 2x, और ये आपको प्रोडक्ट गिवन है आइडेंटिटी के. तो 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1.
इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे वन कैन इजीली चेक इट आउट. दिस इज -2x प्लस 0 एंड प्लस 7x. नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो दिस इज 28x minus 28x, and next is 14x minus 14x. I'm sure everyone know how to multiply the two matrices. So using that idea, we can go about getting all the remaining values. Please go about that. And you observe that the first entry over here is 5x. This is 0, this is 0, and rest other values you can easily calculate. Just to save the time, I am not writing each and every term. Now if you compare these two matrices, so one can easily observe that element wise element, 5x is 1 or x is equal to 1 over 5, which is your required answer. If this question would have been for 1 mark, then of course just when I wrote this value in a very first product, I can compare them and I can write down the answer directly without going for the further calculation. But again, it sometimes matters if the same question is for 2 marks. In that case, the examiner might be looking for the certain steps, the calculations. In that case, you have to show the following product, but ultimately, of course, you have your answer as 1 by 5. You can always ask your doubt, can बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बीच बीच में वो भी चेक करता हूं. Now check out the such type of very important questions. Find the matrix X so that X into ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 and this is equal to -7 -8 -9 2 4 6. You need to find this unknown matrix X. Let's initially find out the order of this matrix X. तो क्या होगा इसका ऑर्डर, वो हम यहाँ लॉजिकली सोचते हैं कि X का ऑर्डर अगर मैंने मान लिया M क्रॉस N, तो और इसे मैंने चलो A मैट्रिक्स कह दिया और इसे B, तो A का ऑर्डर ऑलरेडी मुझे पता है, दिस इज 2 क्रॉस 3 and the answer has again the order 2 cross 3. Now matrix multiplication is defined when this and this matches, so clearly n should be 2 and the order of the answer, the product would be this m cross 3. फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट हो जाता ना यहाँ से, तो m क्रॉस 3 और जो हमें ऑलरेडी बताया गया है आंसर का, प्रोडक्ट का आंसर 2 क्रॉस 3. सो दिस सिंपली गिव्स मी m इक्वल टू 2 एज वेल. इसका मतलब x मेरा क्या हो गया है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो वंस दिस इज डिसाइडेड, लेट x इज एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो अब आप आराम से इजीली ये मान सकते हैं A B C D. So this is the most important step initially for the following question, कि पहले मुझे x पता हो कि उसका ऑर्डर क्या आने वाला है. Therefore, अब आप बस वैल्यूज जब रख देंगे, x ये रहा इनटू a आपका 1 2 3 4 5 6 and this is equal to LHS is a normal multiplication. तो आप इसे जब करेंगे तो दिस इज a प्लस 4b. राइट, नेक्स्ट कितना आ गया
2a plus 5b. Next 3a plus 6b. एंड इधर नेक्स्ट कितना आ जाएगा? c plus 4d, 2c plus 5d, 3c plus 6d. So nothing new, it's a simple multiplication of the two matrices is being done. और अब आप जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर में आप किसी को भी ले लो, अगर मैंने लिया a plus 4b minus 7 है, 2a plus 5b minus 8, 3a plus 6b minus 9. इसी तरह से c plus 4d is 2, 2c plus 5d कंपेयर करा, that is 4, और 3c plus 6d is 6. Now you solve any two equations a और b वाली, इन्हें solve करा using any method you have learned so far, a और b आ जाएगा. Just to be sure कि आपका आंसर सही है, आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट करके एक बार चेक कर लेना. So that is optional. Similarly, इन दोनों को सॉल्व किया, I will get the values of C and D. वो आप यहाँ पुट करके एक अपने लिए वेरीफाई कर सकते हैं. Once I have the values of A, B, C, D. Do remember आपसे तो unknown मैट्रिक्स पूछा था X. तो A, B, C, D की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देंगे and you will have your required answer. ऑर्डर कैसे हमने यहाँ पर चेक किया था, इसके लिए आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल पता होना चाहिए, हाउ वी एक्चुअली मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस. लेट अस चेक आउट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें मैं बता दूंगा तो ये कैसे मैंने ऑर्डर सोचा था वो इजीली समझ आ जाएगा. आई हैव केप्ट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल फॉलो. तो उसमें ही चेक करते हैं ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा. I give you some time to you think about this. Again, let's say this is a matrix B. इस ये A आपको जो निकालना है और इसे मैंने अगर C मान लिया, तो लॉजिकली सोचिए B का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2. फिर A का ऑर्डर अननोन है जो मुझे पता होना चाहिए, चलो उसे M क्रॉस N कह दिया. और C का ऑर्डर क्लियरली आपको गिवन है 3 क्रॉस 3. नाउ थिंक लॉजिकली, मैट्रिक्स प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है? जब ये और ये मैच करें. तो क्लियरली M आ गया 2 के इक्वल. नेक्स्ट क्या होता है? आंसर का ऑर्डर जो है, जो भी इस प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस N. फर्स्ट एंड लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं ये ऐसे ऑर्डर चेक करने के लिए. तो 3 यहाँ का और यहाँ का N, तो 3 क्रॉस N. और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है 3 क्रॉस 3, ये रहा आंसर का. तो इससे मेरे पास N की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियरली 3. तो दैट मीन्स अब की बार A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3. तो वंस इट इज डिसाइडेड अबाउट द ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कैसे लेंगे? क्या मतलब होता है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द इंटरसेक्शंस आप इजीली जज कर सकते हैं कि आई हैव टू टेक दिस टाइम A, B, C, D, E, F. And that is the first and the foremost important step of this question.
अनलेस आई एम एबल टू डिसाइड द ऑर्डर, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक बार चेक कर लीजिए इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ स्टिल एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, ऑर्डर चेक करिए, 2x3 आया है। सो लविश, आई थिंक अब आपको क्लियर है। आपने 3x2 कहा था। सो फाइनली द ऑर्डर इज 2x3। बस अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। सो 2 -1 1 0 -3 4 into A B C D E F, and this product is actually -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 and 15. इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, आप मल्टीप्लाई करिए, क्लियरली ऑर्डर 3x3 ही रहेगा। तो क्या आ रहा है यहाँ, 2A minus D, 2B minus E, 2C minus F, और यहाँ कितना आ रहा है, क्लियरली A आएगा, नेक्स्ट विल बी B, नेक्स्ट विल बी C, और फिर आएगा -3A plus 4D, and similarly you can write down for the other elements. It is now simple comparison. तो अब आप जो कंपेयर करेंगे, और सेकेंड रो के कंपैरिजन से क्लियरली मेरे पास A आ गया 1, B इज -2, C इज -5, ABC आ गए। ABC की वैल्यू यहाँ रख देंगे, I will get the value of D, E and F, and finally I will substitute the values over here to get the unknown matrix A. In fact, अगर आपके पास ये जो मैट्रिक्स B है ना, यहाँ अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, इसका ऑर्डर तो 3x2 दिया है। If it would have been a square matrix, then we have a shortcut approach. हम यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई विद द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कर सकते थे, but such type of questions will follow in the next chapter, determinants, जब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। तो अभी के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मुझे थोड़ा सा ये लेंथी मेथड फॉलो करना रहा है, but once if the given all matrices were say the square matrices, then we have a shortcut approach that we will take later on. If A and B are given and A plus B whole square is A square plus B square, find the values of A and B. Probably, if I am not wrong, I already have considered this question earlier also, but while checking your assignment जिन्होंने क्लासरूम में अपलोड किया था, तो I could see दो स्टूडेंट्स ने कुछ इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी मेथड से किया है। क्या करा, A की वैल्यू पुट कर दिया गिवन रिलेशन में, B की वैल्यू, फिर यहाँ A और B की वैल्यू, एंड देन यूजिंग अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन
they were able to get the correct answer, but that is little bit calculative. तो इसीलिए इसको एक शॉर्टकट याद दिलवा देता हूँ. क्या होता है? पहली बात, जो नॉर्मल नंबर्स में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so this type of rule is not valid for matrices. तो मैट्रिक्स के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैंने इस रिलेशन को लिखा है, ये गिवन है. तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा. तो दैट इज बेसिकली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. इसका मतलब व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट पहले a के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर b के साथ. so that a square plus b square vanishes and we get a simple relation AB plus BA is 0 matrix. Now you substitute the given matrices. A की वैल्यू ऐसे ही B की वैल्यूज पुट कर दीजिए, so that it will now be the multiplication of only simply two matrices, and the answer would be clearly 2 cross 2 वाला 0 matrix. Simplify, you will get your desired answer. Solve in your homework, and आपकी assignment में ये already है question. So whenever you are solving any of the assignment given to you, please make it sure that you match your answers as well. Answer assignment में मैं सभी के साथ दे रहा हूँ, right, for a sake of simplicity. तो आप उनको ध्यान से चेक जरूर करिएगा. और अगर कोई आंसर मैच नहीं होता है तो डू लेट मी नो. दो ही चीजें हो सकती हैं, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक या हो सकता है वो आंसर गलत हो. सो दैट आई विल क्रॉस चेक, बट यू नीड टू कम फॉरवर्ड इफ यू फाइंड समथिंग विच इज नॉट क्लियर और कहीं कोई अगर आंसर मैच नहीं करे. If A is given 3 minus 5 minus 4 and 2, you are to prove this result. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको सिंपली ये वैल्यूज निकालनी है इनकी, राइट. तो फर्स्ट पार्ट में जब आप LHS की बात करेंगे, सो 3 minus 5 minus 4 2 इंटू अगेन a लिख दिया, ये a स्क्वायर हो गया, minus 5a and minus 14i. Simplify and you will get this as 0 matrix. So please do first part in your homework. Very simple. My main focus is on now the second part. Hence obtain A inverse and A cube. तो दोनों अलग अलग पार्ट हैं. तो to find A inverse और साथ में क्लियर आपको बता दिया गया है hence find. hence obtain का मतलब जो आपने अभी जस्टिफाई करा, इस रिजल्ट को यूज करना कंपलसरी है. अदरवाइज ए इनवर्स लिखने का हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स है. वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स यूजिंग सम डिफरेंट वेज, बट हेंस ऑब्टेन में आपको इसको यूज करना मस्ट है. तो ये हम जस्टिफाई कर चुके हैं. अब इसकी हेल्प से देखिए कैसे हम ए इनवर्स निकालेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. pre-multiply both sides by A inverse.
लेटर यू विल लर्न, इस क्वेश्चन में एटलीस्ट अगर मैं प्री मल्टीप्लाई की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता, even that will also work, but in general we prefer to use with start with pre multiply. pre मतलब पहले, तो a इनवर्स से मैंने इस रिलेशन को बोथ द साइड्स प्री माने पहले, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन द ब्रैकेट, a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को तो मैं a इंटू ए लिख सकता हूं, इसे स्प्लिट कर दिया, माइनस 5 और ये a इनवर्स इंटू ए आ गया, माइनस 14 a इनवर्स इंटू आई, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो मैट्रिक्स वो भी जीरो दे देगा. अगेन रिकॉल सर्टेन रूल्स, ये a स्क्वायर इंटू ए एक साथ हो गया, a स्क्वायर इंटू ए आपके पास होता है i, दैट इज बाय द डेफिनेशन. तो a इनवर्स इंटू ए, ये तो i हो गया, एंड ये इक्वल टू कितना आ गया, 14 a इनवर्स इंटू आई. चेक करिए, i से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही रहेगा, और अल्टीमेटली हमें क्या रिजल्ट मिल गया, यहां से a इनवर्स आ गया 1/14 टाइम्स a माइनस 5i. अब हम फाइनली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस. तो a कितना है, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5i. Here it is a normal multiplication and simplification. तो आप जब करेंगे तो ये 3 माइनस, चलो ये कितना आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 एंड देन फॉलोड बाय माइनस में 5005. गो अबाउट दिस सिंपल कैलकुलेशन, तो ये दे देगा 3 माइनस 5 माइनस 2, then minus 5 minus 4 and minus 3. लास्ट स्टेप में आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू टेक आउट नेगेटिव कॉमन, 14 तो बाहर ही रहने दो, सो दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड a इनवर्स. जबकि इसे लिखने का एक शॉर्टकट मेथड है, वी विल लर्न दैट वेरी सून, बट अगर हेंस फाइंड में आ जाता है देन आई लेफ्ट विद नो चॉइस, आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे करके दिखाना है. नेक्स्ट कहा है टू फाइंड ए क्यूब. आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक हिंट. इस रिलेशन से जब आपको ए क्यूब की रिक्वायरमेंट है, क्या करेंगे, एनीवन थिंक लॉजिकली? A square multiplied by a. Yes, this time around आप सिंपली प्री या पोस्ट प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a. तो a से मल्टीप्लाई दिखा दीजिए, एंड यूजुअल मेथड जैसे हमने ऊपर किया था, फॉलो दैट. तो ये a क्यूब आ जाएगा, एंड माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14a बचेगा, एंड दिस विल गिव मी a क्यूब का एक्सप्रेशन एज 5a स्क्वायर प्लस 14a. अब आप a स्क्वायर यहाँ निकाल चुके होंगे सबसे ऊपर, तो आपको a स्क्वायर और a की वैल्यूज रिप्लेस करना है टू विल गेट द वैल्यू ऑफ a क्यूब. इवन a पावर 4 भी पूछा जा सकता था. लविश, a इनवर्स जैसे आप कह रहे हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से
इस क्वेश्चन में अगर आप कर देंगे यू विल गेट नो मार्क्स, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये इंग्लिश यहाँ जो लिखा है ना, ये हेंस ऑब्टेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेंस ऑब्टेन का मतलब इसको यूज करना कंपलसरी है आपके लिए, तब आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप वेरीफाई करना चाहो वो आपकी चॉइस है, बट एज पर द स्टेटमेंट, द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, यहां आपको यही करना रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। Check out this question. A given है 3/3 और prove that A inverse is equal to A square minus 6A plus 11I. Anyone? क्या करा जाए? One of the easier approach जो माइंड में आनी चाहती है जनरली, भाई A इनवर्स है, वो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल दूंगा टू गेट माई LHS, और ऐसे ही RHS जो है वो आप अलग से निकाल लेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, एंड ऑफ कोर्स इट विल प्रूव द रिजल्ट, नो डाउट इन दैट। बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर, A इनवर्स निकालना 3/3 के लिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन जब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे we will learn another method to find the A inverse, but both the methods are very very calculative। तो इतना लंबा क्वेश्चन बन जाएगा कि ये भी निकालूं और फिर RHS के अंदर भी सॉल्व करा जाए। we will understand this question carefully, look at the question carefully, और हम इसको एक बहुत इजी वे से देखो अटेम्प्ट करेंगे। अभी वो मैं टेक्निक आपको वैसे बता चुका हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स A, तो A इंटू A इनवर्स, A से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है, सो व्हाट विल दिस गिव मी, A इंटू A इनवर्स तो I हो गया, तो A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 11A इंटू I, वो 11A हो जाएगा। व्हाट डज दैट मीन, जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, दिस रिजल्ट। तो इसे प्रूव करने का मतलब आप ये प्रूव कर दीजिए, यू विल बी डन। और इसे प्रूव करना आसान है, कैसे, यू कंसीडर RHS, और RHS में आपको सिर्फ एक बार A स्क्वायर और एक क्यूब भी तो निकालना है, तो स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, दैट इज प्रोबेबली मच इजियर। अगर मैं कंपेयर करूं A इनवर्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना, so instead of direct approach LHS and RHS, we will in other word prove this result, और इसके प्रूव होने का मतलब एक्चुअल में ये ट्रू हो गया। So attempt this question in your homework and check out the very similar, I think next question बिल्कुल वैसा ही मैंने रखा होगा। Yes, check this out. अगेन अगर मैं यहाँ A इनवर्स निकालने लग जाऊं,
तो it will be in terms of XYZ elementary transformation बहुत complicated हो जाएगा. So what we are going to do here? Anyone? क्या करें? हिंट मैं दे चुका हूं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चंस में. Multiplying by A again. Yes, fine. So again अब आप यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए by A both sides. तो A इंटू A ट्रांसपोज कितना आ गया? A इंटू A इनवर्स. और याद रखिए A इंटू A इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. लुक केयरफुली. अब अगर आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये A आ गया और अब आपने इसे इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. And this is simply your identity matrix. Go about the normal multiplication, compare the elements, you will get the required values of x, y and z. और 2 आंसर आएंगे प्लस माइनस की टर्म में. हो सकता था आपने यहाँ प्री मल्टीप्लाई किया था a के साथ, और अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते, then what is the change? आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पोस्ट कर देता बाद में आ जाता ए, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता, बट इससे ये रिलेशन मिल जाता और अब ए ट्रांसपोज पहले आ जाता. सो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन जर्नल. हो सकता है किसी स्टेप में कैलकुलेशन एक स्टेप थोड़ा कम हो जाए, बट अदरवाइज बोथ आर द करेक्ट मेथड्स टू फॉलो. बस अब ये प्रोडक्ट आप निकालेंगे, वो इसके इक्वल रख देंगे, you will get the required answer. So complete this question in your homework. Are you done with the principle of mathematical induction, PMI, class 11th में? I think reduced syllabus की वजह से वो आपको नहीं करवाया गया होगा, but now since we have the whole syllabus, तो एक ये क्वेश्चन है या एक ये है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th इज रिक्वायर्ड. तो इसे मैं आपके साथ अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, but generally I do not expect this type of questions in the board examination. So more or less whatever is required throughout chapter 3, everything is covered. And many of the concept जो हमें अब आगे next chapter के लिए चाहिए, determinants के लिए, we have the base for that. So please complete all these questions in your homework. Thank you. You can leave the class now. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you.